Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning.
Good morning, ma'am. Good morning. I'll just be starting. Give me a minute. Christian, your roll number is not there. Christian, your enrollment number is missing. Are you there, Krish? Otherwise, I'll have to remove you. Either you speak up. Krish Jain. Your roll number is not there. Anybody who knows him, please tell him. I'm removing him. Otherwise, he'll have to change his roll number. And Priya, still your roll number is not mentioned correctly. Okay, so when we talk about harmony in the body, what are the two things that are necessary to maintain it? What are the two things necessary? Pranjal Paliwal, again, your roll number is missing.
प्रांजल पालीवाल यस मैम, यस मैम। नंबर मैम वो रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है मैम सर। अभी नहीं आएगा। आपने क्यों नहीं डाल रखा? इतने दिन से मैं मैम बात वो कर बार बार चेंज हो जाता है मैम, रोज रोज। लैपटॉप में कर लो, उसी में कर रखा है, इसलिए चेंज हो रहा है। के फिर से एंटर करो तो आ जाएगा। मैम ये असली वाला ये रहने दो इसको। Okay, so what are the two things necessary to maintain harmony in the body? मैम संयम एंड स्वास्थ्य। Okay, what do you understand by Sanyam and Swasthya? What is the meaning of Sanyam first of all? मैम संयम का मतलब होता है कि जब आई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे कि उसको बॉडी को नर्चर करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है और साथ ही साथ उसका राइट यूटिलाइजेशन करना है फॉर एनी राइट पर्पस, उससे कहते हैं संयम। Okay, and anybody else? What is Swasthya then? मैम स्वास्थ्य एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के जितने भी जो पार्ट्स हैं वो सभी अपने फंक्शंस को अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। Okay, when they are in proper coordination with each other. So when there is self-control, then only we can maintain the health, because I starts feeling that it is responsible for the body and it has to do all those things which are necessary to keep the body fit and healthy, rightly utilize it so that the body can give the right output. That is also necessary. ये नहीं कि body को ठीक है आप healthy रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको rightly हमको utilize भी करना है. So quickly I will be revising this and then I'll be doing the program, revising the program to ensure Sanyam and Swasthya. What is our state today? आज हमारी state क्या है? Are we really feeling responsible for the body? What do we do today? और कोई बताएगा प्रणव के अलावा? कोई और बताएगा मुझे? What are we doing today? What is our state today? Are we responsible for the body? Are we doing the things in the right manner? नो मैम। Then what is happening? मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, इसी वजह से मैम इतनी सारी बीमारियां आ रही है। Okay. So there is lack of responsibility towards the body. What are the things that we are doing? 3 चीजें मैंने आपको बताई थी अलग अलग. तो क्या प्रॉब्लम्स हो गई हैं? हम एक तो ये कि हम अपनी बॉडी की तरफ ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह गए हैं। दूसरी चीज ये है कि हम जो पोल्यूटेड फूड, एयर और इन सब का सेवन करते हैं जिससे हमारी बॉडी पे हार्म आता है। और तीसरी चीज ये है कि हम जो है जब भी हम थोड़ा सा सिक फील करते हैं तो हम तुरंत दवाइयां ले लेते हैं बिना ये सोचे हुए, और हम जो अपने डिजीज को सप्रेस कर देते हैं, उसे दबा देते हैं बिना ये सोचे हुए कि वो डिजीज कैसे आई थी और कैसे उसको हम फर्दर प्रिवेंट कर सकें। Right. So we are suppressing ailment. We are giving body polluted, or I should say adulterated food, polluted air, polluted water, which in turn is making body sick. We don't go to the root cause. Instead, we try to eliminate and suppress it by medication. We are not responsible for the body. Lack of sleep, lack of rest is there. Proper time पे food नहीं देते, fast food देते हैं, whatever, we are not taking care of the body in the right manner. So let's quickly revise the program for maintaining Sanyam and Swasthya, and then we will finish this chapter. We'll do the assignment questions. Let me share my screen with you. So let's see what is the program to ensure Sanyam and Swasthya. ये आवर स्टेट टुडे है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे. Now, what is the way out? What is the solution to the present state that we are in?
there are 3 things that we need to remember, very important things. सबसे पहले हमको आदत डालनी है संयम के साथ रहने की, in which the self will take the responsibility for nurturing the body in the proper manner, for protecting the body and rightly utilizing the body. सेल्फ को ये समझना है बॉडी मेरा इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी तो अंडरगो करेगी, ग्रोथ भी होगी, टीके भी होगी, एंड सेल्फ हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इन द राइट मैनर. सेकेंड चीज जो है हमको देखना है कि हम बॉडी के नर्चरेंस के लिए प्रॉपर फूड प्रोवाइड करें, प्रॉपर आहार दें, प्रॉपर एयर वाटर जो भी हम दे रहे हैं वो पोल्यूटेड नहीं हो. उसके बाद हम ये देखें कि हम ऐसा आहार दें जो न्यूट्रिएंट दे, बॉडी को न्यूट्रिशन दे, और साथ में ये जो पूरा प्रोसेस होता है हमारे डाइजेशन का, इंजेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, ये प्रॉपर चले. ओके, अगर इनमें से कोई भी 3 एक्टिविटीज में से कोई भी चीज सही से नहीं होती तो हमारी बॉडी सिक हो जाती है. तीसरी चीज जो हमें करनी है, अपनी बॉडी का प्रोटेक्शन जो है वो हमें देखना है. चौथी चीज भी करनी है, राइटली उसको यूटिलाइज भी करना है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉडी का प्रोटेक्शन की. अगर हम बात करें, संरक्षण की बात करें, तो हमको बॉडी को राइट क्लोथ्स देने हैं, शेल्टर देना है. एज पर दी क्लाइमेटिक कंडीशंस बॉडी को हमें क्लोथ्स प्रोवाइड करने हैं. राइट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर देना है बॉडी को एयर, वाटर, सनलाइट से, सो दैट बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके. और साथ में ये 4 चीजें भी देनी है. मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी. आई थिंक उन नोट्स में ये वाला पार्ट कवर्ड नहीं है, so very soon I will be sharing the part which is covering this also. तो आहार, श्रम, आसन, प्राणायाम, औषधि चिकित्सा, इसमें आहार विहार है. तो आहार इज ऑफ कोर्स फूड, विहार इज प्रॉपर अपकीप ऑफ द बॉडी बाय गिविंग इट प्रॉपर रेस्ट. इसमें विहार में रेस्ट आता है. श्रम, व्यायाम की बात करें तो श्रम इज फिजिकल लेबर, व्यायाम इज एक्सरसाइज, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज भी बॉडी को अपनी करानी है. आसन, प्राणायाम is specifically focusing on योगासन, and प्राणायाम is again breathing पे फोकस कर रहा है. तो हमें इस तरह के आसन या योगासन प्रैक्टिस करने हैं जो बॉडी को सही से मेंटेन करने में हेल्प करें. ब्रीदिंग करनी है जिससे कि हमारी ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज हो वो. औषधि चिकित्सा मीन्स राइट मेडिकेशन एंड राइट ट्रीटमेंट हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द बॉडी व्हेन इट इज सिक और व्हेन इट सफर्स सम काइंड ऑफ ट्रॉमा. सो दिस इज हाउ वी कैन एंश्योर द हेल्थ ऑफ द बॉडी and the protection of the body. चौथी चीज जो करनी है अगर हमें इस प्रोग्राम में अपने टू एंश्योर हार्मनी इन द बॉडी है, वो हम बॉडी को सही से यूटिलाइज करें, उसका सदुपयोग करें. बॉडी जो है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लेकिन ये सेंसरी इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, सेंसेशंस या कंडीशनिंग्स को प्लीज करने के लिए नहीं है. ये गलत तरीका है सोचने का. वी यूज आवर बॉडी टू एक्सप्लॉइट अदर्स, टू एक्सप्लॉइट नेचर. लड़ते हैं, वायलेंस होती है, बॉडी पे ट्रॉमा आता है, वायलेंस के थ्रू नेचुरल है बॉडी सफर करती है. तो ये सब चीजें जो है हमें नहीं करनी है. एक्सप्लॉइटेशन के लिए बॉडी को यूज नहीं करना, उसको सही तरीके से यूज करना है. राइट बिहेवियर, राइट वर्क, नहीं तो क्या होगा, देयर विल बी disharmony in the body. So we have to ensure that there is no disharmony. We should arrange the right kind of equipment, physical facility जिससे बॉडी का सही यूटिलाइजेशन हो पाए. तो अगर हम फिजिकल फैसिलिटीज नहीं इंश्योर करेंगे तो बॉडी जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकती है. जैसे कि आपको ट्रैवल करने के लिए मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन चाहिए या कुछ करने के लिए मशीन चाहिए किसी भी तरह की, तो ये इक्विपमेंट हमको बॉडी को प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट द बॉडी कैन बी यूज्ड इन द राइट मैनर. Now the next very important thing that you need to understand is we need to correctly analyze कि हमारी फिजिकल नीड्स क्या हैं. जब हमको पता ही नहीं होगा हमको कितना फूड चाहिए, हमारे को कितना क्लोथिंग शेल्टर चाहिए, कितना इक्विपमेंट चाहिए, तो हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि जरूरत हमारी फूड की, क्लोथिंग शेल्टर की या इक्विपमेंट की क्या है, ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है. हम सोचते हैं अनलिमिटेड है, बट दिस इज लिमिटेड and that is what is creating all the problems. So we need to understand that the need for physical. ये appraisal का meaning क्या होता है? Appraisal means evaluate करना, judge करना किसी चीज को. Appraisal हम उसकी करें, उसको judgment करें सही कि मुझे कितना चाहिए मेरी physical facilities. So by understanding the need for physical facility, ये 3 heads में आती है physical facility: food, clothing, shelter and instruments.
फिजिकल फैसिलिटीज में भी आते हैं, मेनली फूड क्लोथिंग शेल्टर होता है, इंस्ट्रूमेंट्स भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेनली 3 चीजें चाहिए होती हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी के सदुपयोग या राइट यूटिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी हैं, तो इनको भी हमको इवैल्यूएट करना है, जज करना है। ओके, सो हमारे अंदर आज क्या मिसकंसेप्शन है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो तो अनलिमिटेड है ना, और हम क्या करते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं, सेल्फ और बॉडी की नीड्स को कभी अलग अलग नहीं समझते। हम सोचते हैं जो बॉडी की नीड्स है वही सेल्फ है, वो हमने कभी अलग अलग इनको देखा ही नहीं। सो वी आर अज्यूमिंग दैट सेल्फ एंड बॉडी आर सेम, एंड नीड्स ऑफ बॉडी अगर हम फुलफिल कर देंगे तो आई सेल्फ भी पूरी तरह फुलफिल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। नेचर हमको सारी चीजें अवेलेबल कराता है, वाटर, ऑक्सीजन सब दे रहा है, ये काफी है, लेकिन जब मैन इनको एक्सप्लॉइट करने लगता है तो क्या होता है कि ये सारी चीजें जो हैं ये अपने आप में धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं, और जब ये फिनिश होती जाती हैं तो क्या होता है कि मैन जो है वो अगेन मैन हैज टू सफर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर। इवेंचुअली हमारे ऊपर ही आएगा, है तो सही, नेचर हमको दे रहा है, लेकिन जब हम इनको एक्सप्लॉइट कर देंगे, ओवर हम इनका यूज करेंगे, तो ये हमारे लिए नहीं बचेंगे। सो वंस वी रियलाइज दैट द नीड्स ऑफ द बॉडी आर लिमिटेड, तो हम नेचर को भी प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, ओवर यूज नहीं करेंगे चीजों को, ठीक है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम दूसरों के साथ भी, उनको भी हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। तो जब हम ये दोनों चीजें नहीं करेंगे, ये समझेंगे कि हमारी नीड्स लिमिटेड है, हमको एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है, तो देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी इन द माइंड। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स। हमने ये चैप्टर किया, हार्मनी इन द सेल्फ, हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, जो भी हमने सारी चीजें इसमें सीखी, हार्मनी इन बॉडी भी सीखी, हमने अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना वो भी सीखा, तो ये सारी चीजें इवेंचुअली दे शुड लीड अस टुवर्ड्स राइट अंडरस्टैंडिंग, दे शुड लीड अस टुवर्ड्स हैविंग अ फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नॉट फीलिंग डिप्राइव्ड ऑल द टाइम। सो जस्ट एनालाइज व्हाट यू आर डूइंग, आई वांट यू टू राइट समथिंग ऑन इट। आप एनालाइज करिए, आर यू मेंटेनिंग right kind of self discipline, self control? Are you maintaining your health? Are you correctly appraising your physical needs? What are you doing today? What is your state today? Just analyze it and write a page on it. और अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछो, कुछ पॉइंट्स लिखो और मुझसे डिस्कस कर सकते हो अभी आप कि हम आज कर क्या रहे हैं, what are we doing today? Are we maintaining our maintaining harmony through संयम and स्वास्थ्य? What is our program today? ये जैसे मैंने प्रोग्राम बताया ना, क्या तुम्हारा प्रोग्राम यही है for maintaining harmony in the body? What is your program? So just let me know. I'm giving you 5 minutes. आप इसको लिखिए और मुझसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछिए, then I'll give you the assignment questions and we'll finish this unit today. Next time we'll be starting with harmony in the family. Any queries? किसी को कुछ पूछना है? Anybody wants to ask? Are you writing or not? Hopefully you are writing. Please write what is your program to ensure Sanyam and Swasthya. What is your program? Not what I have told you. What is your program? And do you correctly appraise your physical needs? This is the question. Everybody has to do it. In case there is any confusion, then you can ask me. I'll give you 5 minutes, then we are going to do the questions.
मैम एक चीज पूछना था, हाँ बिल्कुल पूछो, बोलो। जो बॉडी का नीड होता है उससे ज्यादा अगर कोई चाहे तो उसको प्रोस्पेरिटी नहीं मिलती क्या उनके माइंड में? मतलब आई कांट गेट यू, क्या पूछ रहे हो? मैम सेकेंड वाला जो है ना पॉइंट, वो आपने जो लिखा है, इन नेचर द अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज लाइक वाटर ऑक्सीजन एक्सेट्रा इज मोर देन आवर नीड्स। तो हाँ मैम है। अगर ये नीड से ज्यादा अगर कोई चाहता है तो प्रोस्पेरिटी नहीं मिलती उसको? देखो, हमें नेचर में से जो चीजें, रिसोर्सेज हमको नेचर दे रहा है, ठीक है, उनको हमें सही तरीके से यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि हम उनको उसको एक्सप्लॉइट करने लग जाएं। एक्सप्लॉइट से मतलब समझते हो, एक तो होता है ओवर यूज करना, दूसरा होता है वेस्टेज करना। तो जब हम इन चीजों का बॉडी को, तो भाई बॉडी तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को कंज्यूम करना चाहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवर करने लग जाएं, चीजों को वेस्ट करें या उसकी होर्डिंग करते हैं, कई लोग आज के जमाने में देखो ना, होर्डिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे हैं पैसा Yes, कमाने ma'am. के लिए। व्हाट रबिश इज दिस? अभी दिस इज द टाइम फॉर ह्यूमैनिटी, this is the time for taking care of human beings, this is not the time of hoarding these normal things which are available in nature। तो जब हम गलत फीलिंग्स में रहते हैं ना, हम तो डिप्राइव्ड है जी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम इसकी होर्डिंग करेंगे और पैसा कमाएंगे और कमाएंगे और कमाएंगे, तो एंड ही नहीं है ऐसे तो हमारी जरूरतों का। तो हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम अपने रिलेशंस को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब दूसरे ह्यूमन बींग्स को भी हम वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और नेचर से भी हम ओवर चीजें ले लेके रखे रहे। तो दोनों तरह, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट थिंकिंग। हमें अपनी थिंकिंग को सुधारना है। हमारे पास है काफी, पर हमारी जो ये ग्रीड है ना ह्यूमन बीइंग की, ये ग्रीड ह्यूमन बीइंग को बिल्कुल उसकी थिंकिंग को भी खत्म कर रही है, उसके अंदर का जो ह्यूमन बीइंग है उसको भी मार रही है, और साथ में दूसरों को भी हार्म पहुंचा रही है, नेचर को भी हार्म पहुंचा रही है। Just think deeply what is happening today. You will come to know that this is what we are doing. जिस दिन हम समझ जाएंगे कि मेरी बॉडी की नीड्स लिमिटेड हैं और ये इजीली फुलफिल हो सकती हैं, उस दिन हम दूसरों को और नेचर को सबको एक्सप्लॉइट करना खत्म करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। आदमी की लालच कहीं खत्म नहीं होता है, हर समय फिजिकल नीड्स के लिए वो डिप्राइव्ड ही फील करता रहता है और भागता रहता है उसके पीछे। तभी मैंने कहा राइट योर प्रोग्राम, what do you think what your program is? If you are doing something good at this time, anybody you can share it with me. आप कुछ कर रहे हो सोसाइटी के लिए, आप बताओ। At this time are you contributing in any way? There's so many organizations coming up and they are doing so much. मैम अभी जो कंडीशन है, कोई बाहर नहीं निकल पाता घर से, तो जिस भी वे में ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू जैसे भी किसी की हेल्प की जा सकती है वो करना चाहिए मैम। बिल्कुल करना चाहिए, that is the most important. किसी को बेड की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, तो वो ट्विटर के जरिए या फिर किसी भी मैम वे में कर सकता है। बिल्कुल, अगर आपको पता है, आप इंफॉर्मेशन गैदर करके यू कैन पुट इट एट वन प्लेस। यू आर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यू आर टेक savvy ऑल्सो, बहुत सारे लोग हैं उनको पता है कि हम किस तरह से इस तरह की हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, दे कैन ऑफ कोर्स डू इट। I hope you are writing. I hope everybody is putting down their program for ensuring Sanyam and Swasthya. Yes, beta. Please, everybody do it. What is your program to ensure Sanyam and Swasthya? I'm showing you the assignment questions also by the time. These are the assignment questions. सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन संयम, डिफाइन स्वास्थ्य, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल,
Let's move back to this slide. What is self control? इसको अगर हम ब्रीफ में 25 वर्ड्स में बताएंगे तो आप बताइए. It is a feeling of responsibility. मैम एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. बोलो. मैम अभी सबकी ये इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो मैम जैसे कोई थोड़ा मिडिल क्लास घर से आता है, तो कॉलेज में लाइक फी जमा करना है, उसके घर में कोई कोविड पेशेंट है, तो मैम उसमें उसकी भी हेल्प करके, मतलब फी के सबमिट करने की डेट एक्सटेंड करके, इस वे में भी हेल्प किया जा सकता है मैम. नफीस कॉलेज ने डेट एक्सटेंड करी ना, इसीलिए कोशिश नहीं करी. मैम, बट मैम अभी तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला ना. देखो लक्ष्य, हम भी कोशिश कर रहे हैं. मैम इससे भी प्रोस्पेरिटी मिलती है. शेयर करो. क्यों कहती हूँ मैं, प्रॉब्लम है भाई, शेयर करो, हम आगे पहुंचाएंगे तुम्हारी बात को. कर रहे हैं कोशिश. अब जैसी सिचुएशन है उसमें सब जो बेस्ट कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं. हाँ बोलो, और क्या कहना चाहते हो? मैम लाइक खूबसू के घर में मैम डेथ भी हुई है अभी कोविड के कारण, देखा जाए. यस बिल्कुल, बहुत कुछ हुआ है. बहुत इस टाइम जरूरत है एक दूसरे को समझने की. एक वर्ड मैं यूज करती हूँ, एम्पैथी. Empathy means that you understand the feelings of other people. So there's a need to be empathetic also. Okay, so everybody tries, we all try to do it. But कई बार आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो मतलब इस empathy का भी फायदा उठा लेते हैं. वो नहीं होने देना है. हमें जजमेंट हमारा सही रखना है. Yes, Priya, you want to say something? No, ma'am. नफीस और कुछ आप? चलो मैं वापस असाइनमेंट क्वेश्चंस पे हम आते हैं. क्विकली लेट मी शो यू. तो संयम मैंने बताया, सेल्फ रेगुलेशन. इट इज फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैज टुवर्ड्स द towards providing nurturance to the body, towards protecting the body, and for utilizing the body in the right manner, because body is like an instrument and I has to provide nutrition, to provide protection, and also to rightly utilize the body. ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं स्वास्थ्य पे. It is a condition when body is properly performing all the functions. There's proper coordination between different parts of the body and body is fit for being used. ठीक है, तो ये हो गया स्वास्थ्य. Let's get back to the assignment questions. Second is explain करिए आहार विहार औषधि चिकित्सा. मैंने अभी आपको बताया है. Ahar vihar means when you take food for providing proper nutrition to the body, and vihar is providing proper rest to the body so that the body is fit for use. Aushadhi chikitsa is providing right medicine and treatment to the body whenever the body falls sick. But this medication should not be to suppress the ailment. It should be to remove the root cause of all the problems that the body is facing. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ हार्मनी इन द बॉडी. आज क्या कंडीशन है? आज ये कंडीशन है दैट वी आर नॉट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी, वी आर नॉट गिविंग राइट न्यूट्रिशन टू द बॉडी, वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर रेस्ट टू द बॉडी. मेडिसिन लेते हैं एलिमेंट को सप्रेस करने के लिए, पोल्यूटेड एयर वाटर फूड वो देते हैं बॉडी को, तो बॉडी जो है वो ऑल द टाइम द बॉडी इज in a way not healthy because of all ऐसा these. क्यों होता है कि थ्योरेटिकली पढ़ने में मैम ये सब चीजें हम पढ़ लेते हैं, अच्छी चीजें, बेटा पढ़ाने तो पढ़ेंगे आपको थ्योरी. हाँ बोलो. डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता? तो करना है ना, कोशिश तो करना है ना. आइडियल्स तो पढ़ाते हैं. देखो मॉरल साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें आपको मॉरल वैल्यूज पढ़ाई जाती हैं. वो क्यों पढ़ाई जाती है? कि ये अच्छी हैं. तो जब तक हम अच्छी चीजों को स्ट्रेस अपॉन नहीं करेंगे, बच्चों में वैल्यूज को इनकलकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी मिथ में ही रहते रहेंगे. किसी ने कुछ बता दिया, कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, तो वो उस मिथ में रहेंगे. तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी चीज है जो उनको बताया जाए हाँ ये सही है, तो वो उनको गाइडेंस मिलती है, उससे एक डायरेक्शन मिलता है लाइफ को. अगर जो करता है वो अच्छा बनता है, उसको खुद ही पता लग जाता है, उसको अंदर हार्मनी आती है, अंदर इनर पीस आता है उसके माइंड में.
नेक्स्ट है डिस्कस द प्रोग्राम टू एंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य। तो हमारा प्रोग्राम मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। द प्रोग्राम इज दिस: to understand, to live with Sanyam, self takes responsibility towards the body. Okay, nurturing the body, कैसे करना है, सही आहार देना है, अच्छी एयर वाटर देना है, इंजेक्शन डाइजेशन एक्सक्रीशन ठीक रखना है, संरक्षण प्रोटेक्शन देना है बॉडी को, है ना, आहार विहार श्रम व्यायाम आसन प्राणायाम औषधि चिकित्सा, दिस हैज टू बी गिवन। बॉडी को सही इंस्ट्रूमेंट देके यूटिलाइज करना है, गलत तरीके से नेचर को एक्सप्लॉइट या अदर ह्यूमन बीइंग्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं यूज करना, ठीक है। और लास्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द वे फॉर करेक्टली अप्रेजिंग आवर फिजिकल नीड्स। तो आप इसकी यहाँ से बात करेंगे। हमें समझना है कि हमारी नीड्स जो हैं वो लिमिटेड होती हैं, फूड्स क्लोथिंग शेल्टर और इंस्ट्रूमेंट्स की। इसको सही तरीके से एवेल्युएट करें, राइट अंडरस्टैंडिंग लाएं, चीज़ों को ओवर यूटिलाइज नहीं करें। तो ये आपको इसमें आंसर में आपको लिखना है कि नेचर की जितनी रिसोर्सेज हैं वो हमको अवेलेबल हैं, उसको हम लिमिट में यूज करें और अपने माइंड में फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी लाएं। When we correctly appraise our physical needs, there will be a feeling of prosperity in the mind. So this is what you need to explain. So these are your assignment questions for this particular chapter. I'll soon share the notes with you. अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो. Let me take your attendance. मैम आप जो असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रहे हो, वो लोग हमारे घर वाली जो A4 साइज की कॉपी उसमें बना रहे हैं, तो आप वो एक्सेप्ट कर लोगे ना बाद में? हाँ मैं ले लूंगी. बाकी अगर कॉलेज में आके कोई सिलेबस बचता है तो फिर उसको हम कॉलेज में फिर कॉलेज वाली कॉपी में कर लेंगे. नहीं बचता है तो जैसे आप अभी कर रहे हो. मैम अगर कॉलेज में आने के बाद में सपोज एक ही चैप्टर बचता है तो उसके लिए फिर कॉपी परचेस तो क्या ही करेंगे? हाँ देख लेंगे, वो हम देखेंगे. अभी तो हमारे 2 यूनिट आज कंप्लीट हुए हैं. और दोनों यूनिट के असाइनमेंट सब हमारी कॉपी में कर रहे हैं अभी. बिल्कुल आप कर लो. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक ओके है. मैम. So that will be all for today, students. We'll continue with a new chapter in the next class. Thank you very much.